Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, guys, in this particular session, we are going to continue with our discussion based on unit number 14, which is company account one. Okay. So, I hope आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा आपका, ठीक है। तो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट किया था हमारे कंपनी अकाउंट वन को, ठीक है। तो जिसमें ऑलमोस्ट हमने आपका जैसे आपका टाइप ऑफ कंपनीज, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर्स, तो यहाँ तक का हमने जो जर्नी था वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सो और इसके अराउंड जो एरियाज थे, कहीं ना कहीं उनके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस एंड केसेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर आपका डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों ने ये नहीं देखा, पहले प्लीज आपका फर्स्ट वाला पार्ट जरूर देखेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड द रिमेनिंग वन, ठीक है। तो हमने लास्ट जो क्वेश्चन आपका किया था दैट वाज दैट इज समथिंग रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर इटसेल्फ, ठीक है। इसका डिस्कशन हम लोगों ने नहीं किया था, अगर आप लोगों ने पिछला सेशन देखा होगा था, ठीक है। सीक्वेंस वाइज फॉलो करना है। सीक्वेंस इज कॉन्सेप्ट, कंपाइलेशन जो वीडियोस हैं, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज का एक वीडियो आपको मिलेगा मॉड्यूल ए के ऊपर ऑलमोस्ट फॉर 10 आवर। देन आपका यूनिट वाइज एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज, देन वी विल गो फॉर मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट, एंड देन फाइनल रिविजन इन मॉक टेस्ट, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करेंगे, so you'll definitely succeed in your upcoming examination. Now the very first question which we want to discuss in this particular session is share which are discounted and are issued by a company to its employees or director and are given in exchange for a value added by an employee or director are called. So इनको हम लोग क्या बोलते हैं? These are generally known as sweat equity shares. Okay. So let's say you are working with some XYZ organization, ठीक है। So आप और XYZ organization का हिस्सा बने and you develop something like unique for that particular organization. Let's say you develop an application for that particular organization, ठीक है, or you provided an idea to this particular organization. Due to that particular idea or application, their growth, they achieve a higher number of sales or the customer acquisition or the overall revenue as well, okay? In return, what company is doing, they are issuing like they are allotting you some set of shares, okay? So that is generally, those type of shares are generally known as sweat equity shares, okay? We will come to that particular one. Similarly, like sweat equity shares, as we know, these are generally issued by organization or companies to their employees. Similar one, another one we have that is generally known as ESOP, okay? So this employee stock options, okay? So it is similar to sweat equity shares, but mostly it is like generally this is for the listed companies, and it is usually done by the unlisted companies. Let's say there is a startup who coming with they are doing very well, suppose that, and you are part of that particular startup and you have that potential, कंपनी वांट टू रिटेन यू, राइट। सो वो चाहती है कि आप उनके साथ लंबे समय तक काम करो, ठीक है। सो लेट्स से आपका जो इंक्रीमेंट्स है उसमें दे वांट की, लाइक लेट्स से योर डिमांड इज की फ्रॉम योर करंट सैलरी पैकेज इज 12 lakh and you want 24 lakh, ठीक है, बिकॉज यू नो योर पोटेंशियल, ठीक है। नाउ द कंपनी इज डूइंग सम सॉर्ट ऑफ नेगोशिएशन कि सर वी कैन नॉट गिव यू 24 lakhs, हाँ, in replacement we have some proposal for you, like we will give you 18 lakh per annum, 6 lakh we will allot you these stock options, ठीक है। So once we will get listed, so during that time you'll get benefited, or else after 3 years or 5 years tenure duration you can encash those particular shares. So these kind of dealings, ठीक है। So usually this is done by unlisted company and this is by listed company. What is forfeited, that we already discussed. When company issue called up capital and the investor, like let's say investor are not paying that particular money, so we have to forfeit those particular that particular amount or those particular shares by making reverse entries that we have discussed. Right issue of shares is basically, this is again done by the listed companies itself, okay? So sometimes companies, they generally provide some benefit to their existing company. Let's say there is a company called ABC company, okay? Let's say you have 1000 shares of this ABC company, okay?
So you own 1000 shares in your demat account of this ABC company, and their current market price is suppose that let's say it is 1500. Okay, so 1500 per share. The current market price is 1500 per share. So now company want to facilitate their existing shareholders, so they come up with right issue. So whenever company they come up with their right issue, they generally issue this particular thing in a kind of ratio. Let's say they are saying कि those who own 100 shares, we will give them 10 shares. So it is usually in a ratio and at a discount price at the rate of, let's say current market price is 1500, we will give you at 1200. That means being an existing shareholders, you will get a discount if you invest more money in our shares. So we will give you a discount of 300 rupees per share. Okay. So now in this particular case, you have two major right. First one is you can right to purchase. So you can purchase how many shares? 1000 or 100 is to 10. That means you can purchase 100 shares of this particular company at 1200 TM. So this is your first right, right to buy TM. Second one is a right to transfer. You can transfer this particular one in your family accounts or blood relation. Third one is it is not an obligation. ठीक है, so it is not an obligation. ये किसी भी प्रकार की आपके ऊपर अनिवार्यता नहीं है कि आपको इसको खरीदना है या आपको इसको ट्रांसफर करना. आप चाहें तो उसको एज इट इज छोड़ भी सकते हैं. ठीक है. So now whenever company come up with right issue, so what will be the impact on companies share prices? Their prices will go down. ठीक है. कोई भी कंपनी आपका राइट इश्यू लेके आएगी तो उसके फॉर टाइम बिंग their prices will decline in the market because it is an outflow for the company itself. तो ये दूसरी चीज आपका राइट इशू जो डेट आपका होगा अनाउंसमेंट का, ठीक है, उस डेट पे वो शेयर्स आपके डीमेट में होने चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं कि कंपनी ने आज आपका राइट इशू अनाउंस किया, देन अगर आज या कल में अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज द वन थिंग. So one by one we'll discuss these all. Okay. So as per section 54 of Companies Act 2013, a company may issue sweat equity shares if following conditions are fulfilled. Very important one, guys. Please do take care about this. Okay. The issue of authorized by a special resolution, which is passed by the board of directors. Okay. Like how many shares we want to allot this employee X at what price and all. Okay. The resolution specifies the number of shares, the current market price, or a classes of director or employee to whom such shares are issued, where the equity shares of a company are listed on the recognized stock exchange. So these are some major like requirements for the sweat equity shares. ठीक है. So जो आपका fulfill होने चाहिए. So we will go through this particular one in detail as well. ठीक है. So sweat equity shares आपका issue of sweat equity shares according to Companies Act 13, sweat equity shares means equity shares issued by a company to employee or directors at a discount or a consideration other than cash for providing know-how or making available right in nature of intellectual property right. जैसे हमने आपका बात किया, ठीक है, एप्लीकेशन का या फिर आपका कोई सॉफ्टवेयर का या फिर आपका कोई पेटेंट, गुडविल या कहीं ना कहीं उसकी जो वर्थ है आपका. ठीक है. और वैल्यू एडिशन बाय व्हाटएवर नेम इज कॉल्ड. ठीक है. सो एज पर सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 13, a company may issue sweat equity shares, issue authorized by special resolution. We already discussed. Resolution specifies the number of shares, and where the equity shares of a company are listed in recognized stock exchange, the sweat equity shares are issued in accordance with the regulation made by SEBI, Securities and Exchange Board of India, in this behalf. And if they are not listed, the equity shares, the sweat equity shares are issued in accordance with the such rule as may prescribe. Okay? So this is the one. So these three guidelines are very very important. Okay? सो आपका ध्यान रखें इनको. ठीक है. और लाइक जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेम कंटेंट यहाँ पे भी, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लाइक आपका जो कंटेंट है वो अलाइन रहे मैकमिलन के साथ. रीजन बिंग क्योंकि यू विल गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर बुक इटसेल्फ. ठीक है. इसके अलावा आपका शेयर इशू एट प्रीमियम. शेयर इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या हो गया? ठीक है. लेट्स से जैसे कोई भी कंपनी आपका आता है, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ XYZ कंपनी हु इज
coming with their IPO. So let's say the face value of that particular company share is 10 rupees. अगर आप अपनी बैंक का बैलेंस शीट खोल के देखोगे तो वहां पे आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा 50 like जैसे 5 crore shares at the rate of face value of 10 rupees. Actually that means the company is raising money from the investors at a book price of this. ठीक है, तो book value के हिसाब से they have raised money at 10 rupees only. ठीक है, so 10 rupees, but in market then they come up with this. ठीक है, तो उन्होंने जो आपका market price दिया है वो कितने में दिया है? Actually they are selling it at for let's say आपका 100 rupees. ठीक है, so the difference between these two, this 90 rupees is generally known as शेयर प्रीमियम. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका शेयर प्रीमियम के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो जिसके ऊपर यहाँ पे बात हो रही है. अ कंपनी विच हैज बीन सक्सेसफुल इट्स ऑपरेशन कैन इशू शेयर एट इट्स at a premium when share issued higher than the face value. ठीक है, higher than the face value. ठीक है, face higher than the face value. ठीक है, they are said to be in premium. The Company Act does not prohibit the issue of shares at a premium. ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे ना, जब भी कोई कंपनी का आईपीओ आता है, so they generally decide their like management itself, company's management itself, they generally decide the आपका लोअर बैंड एंड अपर बैंड कि हमारा आईपीओ आ रहा है एंड दिस इज द प्राइस बैंड कि लाइक जैसे लोअर प्राइस मींस आपका लेट्स से लोअर प्राइस इज 500 रुपीज एंड अपर प्राइस इज 550. दैट मींस आप डाउन साइड आपका बिड करेंगे कहाँ पे? 500 रुपए पे. अपर साइड आपका जो भी है. तो यूजुअली सेबी रूल सेट कि the upper price can be maximum 20% of lower price. ठीक है, तो जैसे अगर 100 रुपए लोअर प्राइस है तो अपर प्राइस मैक्सिमम कितना होगा? 120 होगा. बट दिस फ्रीडम इज बिलोंग्स टू कंपनी इटसेल्फ. ठीक है, वो अपने शेयर को इस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं. फेस वैल्यू से ऊपर जितना भी होगा दैट विल बी अकाउंटेड एज प्रीमियम. ठीक है, amount of premium is decided by board of directors as per guideline issued by SEBI. Premium amount can be utilized only for the following one. पहला, buyback of shares. Companies they can use this money to buy back the shares. ठीक है, पहला. Issue of fully paid up bonus share. ठीक है, bonus share issue कर सकते हैं इसके ऊपर इस amount से वो. Writing of preliminary expenses or discount or commission on issue of shares and debentures, and paying premium on redemption of preference shares or debenture. Redemption means again buyback. ठीक है, तो these are the like we can say this 90 rupees can be spent on these particular areas by the company itself. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा. अगला हमारे पास है बोनस शेयर. व्हाट इज बोनस शेयर? सो बोनस शेयर इज कन्वर्जन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस इनटू इक्विटी. ठीक है, लेट्स से देयर इज अ कंपनी हु हैव लाइक जिनके पास 5000 करोड़ का रिजर्व सरप्लस रखा है एंड दे डू नॉट हैव एनी लाइक नियर फ्यूचर में उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है एंड नॉट. सो व्हाट दे डिसाइडेड आउट ऑफ दैट 1000 करोड़ 200 करोड़ रुपीस उन्होंने क्या किया? उसको कन्वर्ट किया इक्विटी में एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो जैसे जो सेम आपका जैसे राइट इश्यू है उसी की तरह ये भी. तो बट यहाँ पे जो रेशियो होगा लाइक जैसे 100:1. ठीक है, उन्होंने जिनके पास 1000 शेयर्स थे मतलब दैट 2000 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स जो भी आपका निकलेगा. ठीक है, उतने नंबर ऑफ शेयर्स हमारे निकल जाएंगे, उतने नंबर ऑफ शेयर्स आपका जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में एक रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है, bonus means it's completely free. Investor they do not have to pay anything for this one and they get auto credit. ठीक है, तो जैसे कोई कंपनी आपका आता है, आपके पास 1000 शेयर्स थे, उसने आपका लेट्स से 100:1 की रेशियो में इशू किया, सो विल गेट 10 shares for free in that particular company. So the bonus issue refers to capitalization of reserve and profit. It result in conversion of reserve and surplus into share capital. They have also mentioned the same line in this. The company issues shares to its existing equity shareholders without any consideration and hence these are called bonus share, right? So as per section 63 of Companies Act 13, it is something related to bonus shares. A company may issue fully paid up bonus shares to its members in any manner whatsoever out of like it's free reserves, security, a premium amount, or a capital redemption reserve account. So these are three. Provided that no issue of bonus shares shall be made by capitalizing reserve created by the revaluation of assets. Agla,
Statement 2 is no company shall capitalize its profit or reserve for purpose of issuing fully paid up bonus shares under subsection 1. It's authorized by articles. It has, on the recommendation of board, been authorized in general meetings of the company, AGM. It has not defaulted in payments of interest or principal in respect of fixed deposit or debt securities issued by the company. It has not defaulted in respect of the payment of statutory dues of the employee like salary, contribution, PPF, EPF and all. The party paid up shares if the outstanding on the date of allotment are made fully paid up. It complies such conditions as may be prescribed. ठीक है, तो these conditions should be fulfilled. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई डेट लिया था एंड आपने पे नहीं किया और आप बोनस शेयर इश्यू करने जा रहे हो. नो, यू हैव टू फर्स्ट पे द प्राइमरी डेट एंड ऑल. ठीक है, मतलब योर बुक शुड बी क्लीन इन एनी वे. ठीक है, सो ये सारे एरियाज आपका. The bonus share shall not be issued in lieu of dividend. So generally a company utilize the capital redemption reserve, share premium and capital reserve first to issue a share because bonus share, because reserve are not free reserve and are available only for certain restricted purpose like issue of bonus shares. If balance in these accounts are fully utilized, then only balance from the sinking funds, general reserve and profit and loss account are used. However, the company is free to decide as to which reserve are to be utilized in which order and to what extent for the purpose of issue of bonus shares. Okay, तो ये ऐसे guidelines कई बार आपको मिलती हैं एग्जामिनेशन में, so please do take care about these things. अगला आपका इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन. An issue of shares offered at a special price by a company to its existing shareholders in proportion to their holding of old shares. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो proportion means ratio आपका existing shareholders, दूसरा आपका स्पेशल प्राइस मींस डिस्काउंट प्राइस. तो कौन सा है आपका ये, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स. ठीक है, so it is generally known as right issue of shares. ठीक है, so right issue of shares is an issue of shares offered at a special price by a company to its existing shareholder. बोनस में क्या होता है आपका, बोनस इज सिमिलर लाइक टू दिस बट इट इज फ्री फॉर. ठीक है, इन्वेस्टर को यहाँ पे कुछ नहीं होगा. ESOP और स्वेट इक्विटी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस आपका कर लिया. ठीक है, in the balance sheet of a company, share premium is shown under which head? ठीक है, तो जो आपका share premium है that will be part of which head of balance sheet? तो what will be your correct answer? Reserve and surplus. ठीक है, तो जब हम लोग अगला जो कंपनी अकाउंट 2 है वहां पे जब हम उसको स्टडी करेंगे ना, तो ये जो आपका पूरा बैलेंस शीट के जितने भी हेड होते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो विल गेट हायर क्लैरिटी. ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से वो समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन है. If the issue price of shares higher than the nominal value or nominal value is equal to book value or face value, so the excess amount is credited to, कहाँ पे credit होगा, means face value of the share is 10 and it got issued, जो issued price था आपका वो है आपका 100, so it is in excess of 90 rupees. So this is known as share premium. Premium तो आपका क्या होगा, securities premium account. ठीक है, so the amount received above the nominal value or book value or face value is credited to securities premium account which can be used for specific purpose under Companies Act. वो purposes अभी हमने discuss किए थे. Which type of share issue result in conversion of reserve and surplus into share capital? So what will be your correct answer? Bonus share. ठीक है, तो अभी हमने समझा था ना what is bonus share. Bonus share is basically conversion of reserve and surplus into equity, right? Okay, ignore this. ठीक है, next one आपका a private company is a company that by article except a case of one person company limited to a number of members that. तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या पूछ रहा है, ये हमने कल पढ़े थे. ठीक है, कि आपका जो एक प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम एक से ज्यादा मेंबर होता है, मतलब दो हो सकते हैं. ठीक है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर? 200. ठीक है, तो हमने कल डिस्कस किया था ना, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सो मिनिमम मेंबरशिप इज हाउ मच, आपका 7. हाउ मेनी? 7. ठीक है, एंड मैक्सिमम इज
it is restricted to 200. ठीक है. Similarly, in case of public company, public means which is like private is which is not listed in stock exchange, public is which is listed in stock exchange. ठीक है. Public मतलब सरकारी वाला नहीं है. ठीक है. It is like it is listed in stock exchanges. ठीक है. So in case of this, sorry यहाँ पे 2 आपका होगा. ठीक है. Minimum is आपका 7. ठीक है. Minimum is 7 and maximum there is नो लिमिट. ठीक है. सो मैक्सिमम साइड देयर इज नो लिमिट. ठीक है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है. ठीक है. सो 2 and 200 there shall be a minimum 2 directors for the private company and maximum 200 directors as per company 2013. A private company restrict the right to transfer its shares and prohibit any invitation to the public to subscribe to any सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी. तो क्या होता है ये हमने कल आपका डिस्कशन भी किया था. ठीक है. A company which exercise control over more than 1/2 of the shares of the another company. बताओ ये सब हमने कल पढ़े हैं. तो क्या बोलेंगे हम इसको, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिलायंस. ठीक है. रिलायंस आपका जिसके नीचे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इसके नीचे बहुत सारी कंपनीज हैं. ठीक है. जैसे आपका रिलायंस जियो है. ठीक है. या आपका रिलायंस कैपिटल है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है. ठीक है. तो यहाँ पे हम रिलायंस को क्या बोलते हैं, रिलायंस का मतलब 50% से ज्यादा ओनरशिप है इन सब के अंदर. ठीक है. ऐसे बहुत सारी कंपनीज के अंदर. सो रिलायंस इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी. एंड दीज आर जनरली नोन एज सब्सिडरीज एंड एसोसिएट. ठीक है. डिपेंड ऑन द ओनरशिप. ठीक है. सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, holding company will be right answer for this one. A holding company is a business entity, usually a corporate or limited liability company. A holding company doesn't manufacture anything or does not conduct business or sell anything. Rather than holding companies hold the controlling stock in the other companies. मतलब वो सबको मैनेज आपका कर रहा होता है. ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग कंपनी जैसे टाटा सन्स है, आदित्य बिरला ग्रुप है, गोदरेज इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी इंडस्ट्रीज है, आपका रिलायंस है, अदर्स. ठीक है. Any amount of money that has been already paid by the investors in exchange of shares, that is called, क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा टाइप ऑफ कैपिटल इसको बोलते हैं, पेड अप कैपिटल. ठीक है. सो इट इज जनरली नोन एज पेड अप कैपिटल. ठीक है. सो व्हाट डज इट नोन एज पेड अप कैपिटल. ठीक है. तो टाइप ऑफ कैपिटल्स जो हमने पढ़ा, इसीलिए मैं आपको बोला कि पहला सेशन आपको देखना है उसी के ऊपर रिविजन टाइप का. जो कंपनी अकाउंट 2 है वो भी थोड़ा सा लेंदी होगा, बिकॉज ये अगर आप इनको बुक ओपन करके देखोगे ना तो बहुत ही लेंदी आपका जो दिएगा डिटेल में आपका काफी समझाएगा. ठीक है. सो अ फॉर्मल एंड लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच एक्ट फॉर इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड. अब देखो यहाँ पे एक नई चीज हम लोग सीखने वाले हैं. ठीक है. दैट इज समथिंग रिलेटेड टू IPO प्रोसेस और पब्लिक इशू. ठीक है. सो व्हेन एनी कंपनी गोइंग पब्लिक, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर अपनी शेयर्स को मार्केट में लिस्ट कर रही है, ठीक है, तो दे जनरली आफ्टर देयर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट, ठीक है, आपका जैसे मतलब लाइक जो एक तो पहला जो उसकी पूरी बुक बिल्डिंग आपकी होती है. ठीक है. दैट इज कैटेगराइज अमंग 3 पार्ट. ठीक है. आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम सेबी. ठीक है. जैसे देयर इज अ कंपनी कॉल्ड आपका जैसे जोमेटो है, जेप्टो है, आपका स्विगी है, दे गॉट लिस्टेड इन द रीसेंट टाइम ड्यूरेशन. ठीक है. और आपका जिनका IPO आने वाले समय में आएगा. सो फर्स्ट दे हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम सेबी कि हम लोग अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में आपका रजिस्टर करना चाहते हैं, लिस्ट करना चाहते हैं. ठीक है. हम पब्लिक होना चाहते हैं. पब्लिक होने के पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक होता है कि द कोर इन्वेस्टर जो उन्होंने अभी तक उस कंपनी में उस स्टार्टअप के अंदर फंड्स लगाए थे, दे वांट देयर मनी बैक. ठीक है. सो दे आर विड्रॉइंग देयर मनी एंड इन्वेस्टर. लेट्स से यू स्टार्टेड, मतलब जैसे आपके 3-4 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट किया. ठीक है. यू स्टार्टेड अ कंपनी कॉल्ड ABC लिमिटेड. ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर वन लेट्स से A इन्वेस्टेड 5 करोड़ रुपीस, ऐसे ही B C सब ने भी आपका इन्वेस्ट किया. ठीक है. Let's say all together we all invested 5 crore rupees and the present valuation of this company, इसके जो current market valuation है जिस पे ये IPO लेके आ रहे हैं, that is suppose that 5,000 करोड़. ठीक है. 5,000 करोड़ रुपए. मतलब सिंपल सा कहूं तो मैं बेसिक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर कोई डेट वेट नहीं है तो इनका जो 5 करोड़ था 5 साल पहले जिन्होंने जो कंपनी स्टार्ट करी थी, आज उसकी वैल्यू है कितनी, 5,000 करोड़. ठीक है. सो नाउ व्हाट दे वांट, अब इनका माइंडसेट क्या है कि यार ये 5,000 करोड़ रुपए में से एक तो हो सकता है एक्सपेंशन, हो सकता है कि हम अपनी जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करेंगे जिसके लिए हमें बहुत बड़े फंड्स की रिक्वायरमेंट है एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ डेट एंड ऑल. ठीक है. बैंक लोन या अदर्स. तो या फिर हो सकता है कि अपने पैसे को विड्रॉ करें. ठीक है. जो वेंचर कैपिटलिस्ट एंड ऑल होते हैं दे जनरली लिक्विडेट देयर मनी एट द टाइम ऑफ
दिस आपका IPO एंड ऑल, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि लाइक इस 5,000 करोड़ में से हम क्या करते हैं, लाइक 3,000 करोड़ रुपीस आपका विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, 300 करोड़ रुपए आपका निकाल लेते हैं। तो 300 करोड़ का ये लोग क्या लेके आएंगे, आपका IPO लेके आएंगे, ठीक है। सो दे विल कम अप विद एन IPO आपका इन एनी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो क्या होगा, लाइक नाउ IPO में क्या होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो बेसिकली दे आर इशूइंग शेयर्स, लेट्स से दे आर कमिंग विद 5 करोड़ शेयर्स। तो ये 5 करोड़ शेयर्स आपका किसको दिए गए, आपका जनरल पब्लिक को, आम पब्लिक को, हम जैसे लोगों को, ठीक है। सो नाउ let's say there is a person called Mr. X who invested in this particular company's IPO and he got allotment, उसको shares मिले, ठीक है। तो उसको shares मिले कितने के आपका, let's say he got 200 shares of this particular company or 2,000 shares of this particular company out of these 5 crore shares, ठीक है। तो अब ये जो X है ना, in return he have, इसको कुछ ना कुछ आपका पैसा पे करना पड़ेगा कंपनी को, जो इस 3,000 करोड़ में आपका कंट्रीब्यूट करेगा। So now what happened? X is become owner of this ABC Limited, indirect owner means equity है तो आपके पास voting right है EZM and all के अंदर, ठीक है। So you become owner of this particular company. अब ownership में क्या होता है, if company will do well, your share price will go up, ठीक है। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो इसकी वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से ऊपर बढ़ेगी तो आपका शेयर प्राइस भी ऊपर बढ़ेगा। अगर कंपनी खराब करेगी तो इसका वैल्यूएशन कम होगा और आपके शेयर की वैल्यू भी कम होगी। सो प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी भागीदारी होगी। तो दिस इज the sequence. So after SEBI approval, so companies, जैसे अगर SEBI ने उसको, there are certain guidelines, ठीक है, जैसे आपका 3 साल का प्रॉफिट या अदर्स, ठीक है, जो सारी चीजें हैं, so that is done by SEBI. Now अब उनका IPO लाने का या उनको पब्लिक होने का सर्टिफिकेट SEBI ने दे दिया है। So first thing what company will do, that is red herring prospect, what they'll do, they'll come up with a prospectus, ठीक है। So prospectus is kind of a एन एडवर्टीजमेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपका कंपनी क्या करेगी, अपना प्रोस्पेक्टस लेके आएगी, जिसमें वो आप लोगों को बताएगी, आप लोग मींस जैसे एक्स जैसे लोग या जो भी आपका प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनको, कि हम इस डेट पे अपना IPO लेके आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज आर कंपनीज एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ठीक है, हमारी जो है प्रॉफिट एंड ऑल जो भी है, ठीक है। वी आर गोइंग टू रेज 3,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम द मार्केट एंड दिस विल बी द प्रोसीड। हम उस पैसे को कहाँ पे लगाएंगे आने वाले समय में, मेजर प्रोजेक्ट क्या होंगे एंड ऑल, ठीक है, उनके बारे में जानकारी, हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन सा है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, सो दीज आर द, दिस इज द गेटवे थ्रू विच यू कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनीज IPO, दिस इज द स्टार्ट डेट ऑफ IPO, दिस इज द एंड डेट ऑफ। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, एडवर्टाइज कर रही है, जिससे इन्वेस्टर को पता भी तो होना चाहिए ना कि दिस कंपनी इज कमिंग विद देयर IPO or this company is going to be public, right? So first one this. अब prospectus में एक date mention था कि from this date we are going to come up with our IPO. So that is the second step where investor will start applying for that particular one, ठीक है। So they'll start making application, ठीक है। X ने आपका, उसने सुना, सब कुछ लगा उसको, he was bullish about this company, तो उसने क्या करा, इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए अपनी बिड लगाई, एप्लीकेशन आपका सबमिट किया, किसके थ्रू, जो यहाँ पे आपके मर्चेंट बैंकर्स आपका मेंशन थे, ठीक है। देन आपका फाइनली कंपनी विल कम फॉर अलॉटमेंट, ठीक है। तो फाइनल स्टेज इज आपका अलॉटमेंट, ठीक है। So now in case of allotment, it happened on the ground of pro rata, ठीक है, price time priority, ठीक है। In case where company shares got oversubscribed, and in most cases, in maximum cases, company shares they got oversubscribed, ठीक है। जैसे लेट्स से देयर इज अ ABC कंपनी जिसका IPO आ रहा था, इसकी रेपुटेशन काफी अच्छी थी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी काफी अच्छी थी मार्केट के अंदर, एंड देयर शेयर प्राइस लाइक इसका क्या था, लेट्स से दे कम अप विद एन IPO ऑफ कितने करोड़, 5 करोड़ शेयर्स के, ठीक है, एंड इट गॉट 100% सॉरी इट गॉट 100 टाइम ओवर सब्सक्राइब, मतलब एक शेयर था बेचने के लिए, 5 लोग खड़े हो गए आपका आपका सॉरी आपका 100 लोग हो गए खड़े खरीदने के लिए, ठीक है। सो देयर इज 1 शेयर्स टू सेल, कंपनी के पास 100 लोग आपका बाय के लिए बिड कर रहे हैं, ठीक है, हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। तो अब एक शेयर हम 100 लोगों को तो नहीं दे सकते, सो हाउ विल अलॉट दिस पर्टिकुलर वन ऑन प्रो रेटा ग्राउंड। ये जर्नी हमने कॉन्सेप्ट क्लासेस में काफी डिटेल में समझी है, तो थोड़ा सा भी डाउट है, अगर वो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, ठीक है। तो दिस इज द वन। तो पहला क्या हुआ आपका, प्रोस्पेक्टस, दूसरा रिसीविंग एप्लीकेशन, तीसरा आपका एलोकेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। एलोकेशन विल हैपन ऑन प्राइस टाइम प्रायोरिटी और प्रो रेटा ग्राउंड, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, अ फॉर्मल एंड लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी और कॉर्पोरेट
which act as inviting offers from the public of issue of subscription. So what will be a correct answer? Your answer will be option A आपका, ठीक है. Prospectus will be right answer for this particular question. आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है इनके अराउंड कि है क्या आपका, ठीक है. जैसे a prospectus is basically a formal and legal document issued by a body corporate which act this. Every public company is entitled to issue this, और उनको करना ही पड़ेगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा ना इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है. It comprises complete data regarding the enterprise, the way in which the money is to be collected from the prospective investors. आगे बढ़ते हैं. What are the key fundamental steps in of the process issue of shares? तो क्या होगा आंसर? तो अब ये सारे हो जाएंगे, ठीक है. समझ में आया ना? कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे तो बिल्कुल भी चैलेंज आपका नहीं आएगा, ठीक है. तो प्रोस्पेक्टर हमने समझा था, देन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, देन एलोकेशन ऑफ शेयर्स, ठीक है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रोस्पेक्टस था, देन आपका एप्लीकेशन, आपका इश्यू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट वन. The statement of profit and loss account of a company is prepared as per which schedule of Companies Act 2013. This also is part of, मतलब कंपनी अकाउंट 1 में भी है, ये ऐसी चीजें नहीं है बट इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं, बट कंपनी अकाउंट 2 में ना ये सब आपको यही पढ़ना होगा, ठीक है. तो कौन से शेड्यूल के हिसाब से? आपका शेड्यूल 3, ठीक है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ कंपनीज इज प्रिपेयर्ड. अब देखो जब आप इसको पढ़ोगे ना, सो देयर इज 2 सेक्शन, ठीक है. सेक्शन 228 जिसके हिसाब से सेक्शन 2 दीज 2 आपका किसके लिए मैं बात कर रहा हूँ? कंपनीज एक्ट 2013 के लिए, ठीक है. फिर गो थ्रू दिस. सो एज पर सेक्शन 228 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, companies or joint stock companies in India, they have to prepare their final accounts or they have to prepare certain books, ठीक है. आपका जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंडेटरी, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, योर बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है. 3 आपको बनाने होंगे. कैसे बनाओगे, ठीक है. द फॉर्मेट, लाइक एज पर दिस यू हैव टू प्रिपेयर आपका बैलेंस शीट इक्वेशन और पोजीशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है. ये तीनों आपको बनाने ही बनाने होंगे, मैंडेटरी आपके हैं, ठीक है. नाउ फॉर्मेट ऑफ दीज 3 इज जनरली गिवन अंडर सेक्शन 229, ठीक है. सो एज पर सेक्शन 229, हाउ यू विल मेक दिस पर्टिकुलर बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होगा, कैसे आपका बैलेंस शीट बनेगा एंड ऑल दैट जनरली गिवन अंडर दिस. दिस इज अबाउट द नॉर्मल कंपनीज. इफ इट इज अ बैंकिंग कंपनी, तो बैंकिंग कंपनी का हमने पिछली क्लास में समझा था. फॉर बैंकिंग कंपनी बैंकिंग कंपनी के केस में क्या होता है? आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो वी हैव सेक्शन 29 1949. So banking companies in India, they have to prepare their final accounts in accordance with section 29 of Banking Regulation Act 1949. As per this, we have, like RBI given 2 form A, which is known as performa balance sheet, ठीक है. इसको हम आपका balance sheet. Form B, we have that is generally known as performa profit and loss account, ठीक है. तो इन दोनों के लिए टोटल आपका 18 शेड्यूल है जो आरबीआई ने बताया. आरबीआई ने बताया कि शेड्यूल सीक्वेंस 12 शेड्यूल आपका, ठीक है, जो बैलेंस शीट में होंगे. आपका लाइबिलिटी एंड एसेट, ठीक है. 5 आपका लाइबिलिटी के लिए, 7 आपका एसेट्स के लिए, ठीक है. आपका प्रॉफिट एंड लॉस में 13 से लेके 17 आपका, 13 एंड 14 इनकम, 15 एंड 16 आपका एक्सपेंडिचर, 17 आपका प्रॉफिट एंड लॉस एंड 18 नंबर पे आपका क्या आता है? नोट टू अकाउंट्स, ठीक है. एक्चुअली 5 होते हैं बट नोट टू अकाउंट्स इसी के साथ आपका लिंक होता है, ठीक है. सो ये चीज आपका जिसमें, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जिनको हम आने वाले सेशन में, जैसे प्रिपरेशन ऑफ कंपनी अकाउंट 2 पूरा कंपनी से रिलेटेड, preparation of final accounts of a banking company, that we will understand just after cash flow statement. एक separate unit आपका है, ठीक है. सारी 12 शेड्यूल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है. The minimum paid up capital requirement for a private limited company as per the Companies Act, ठीक है. बताओ क्या होगा, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ठीक है. पहले तो आपको पहले क्या होता था, मतलब एज पर कंपनीज एक्ट 2013 टिल 2015, ठीक है. तो यहां से लेके 2015 तक आपका, ठीक है. फॉर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट के लिए कितना था आपका? 1 लाख. एंड फॉर पब्लिक कंपनी आपका जो मिनिमम पेड अप होना चाहिए था वो था 5 लाख, ठीक है. सो इन 2015 तो आप फिर क्या आया आपका? कंपनीज एक्ट
2015 अमेंडमेंट्स, ठीक है, जो आपके अमेंडमेंट्स आए, ठीक है, तो उसमें 2000 सॉरी कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट्स आपका डेटेड 2015, जिसमें आपका इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। दैट मीन्स नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। आज के डेट में आपका कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत, मतलब ये जो आपका पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसका कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, एज पर लॉ आपका, ठीक है, इट इज completely decided by the company, ठीक है। So the Companies Amendment Act 2015 removed this minimum paid up capital requirement for private companies, providing them with the more flexibility so they can decide it, ठीक है। तो दोनों में ही आपका अगला, which of the following financial statement is mandatory for a company under the Companies Act 13? तो अभी बताया था मैंने, बताओ क्या होगा आंसर। ट्रायल बैलेंस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट यस, ठीक है। तो क्या होगा दिस, इनके अलावा एक और डॉक्यूमेंट्स है जो है आपका बैलेंस शीट स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता बैलेंस शीट, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस को अगर बैलेंस शीट लिखता तो वो हो जाता, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जनरली आपका एक अदर, जैसे ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इट इज अ लाइक मतलब इसको आपको डिस्क्लोज नहीं करना होता है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स, ठीक है, जहां से हम ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में जो हमें मदद करता है, ठीक है दोस्तों। चलो अगला, सो नाउ देर इज वन नोट, आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, पढ़ना है, हाँ, बट इट कैन बी, वो आपको पूछ सकता है, हाफ मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि ठीक है। सो डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। पहला, फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिलेटिवली इजी बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लीगल फॉर्मेलिटीज। जैसे मैं और आप मिले, हमने मिलकर कंपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर ली, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ लिमिटेड कंपनी इज डिफिकल्ट बिकॉज टू मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन दिस केस, ठीक है, क्योंकि वहां पे फिर आपका जो बहुत सारे शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स जो भी हैं आपका, उनके साथ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपल्सरी, but registration of a company a company is compulsory as per companies act, ठीक है। हम दोनों का पार्टनरशिप वो म्यूचुअल उस पर भी चल सकता है, बट इसका रजिस्टर होना जरूरी है एज पर कंपनीज एक्ट। मेंबरशिप, पार्टनरशिप फर्म कैन हैव मिनिमम 2, तभी पार्टनरशिप होगा, ठीक है, एंड मैक्सिमम 50 आपका, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम नंबर्स आपका, मैक्सिमम नंबर्स इज 10, सॉरी, ठीक है, 10 ऑफ द बैंकिंग एंड 20 इन केस ऑफ अदर बिजनेस, प्लीज डू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो बैंकिंग के बिजनेस में आपका 10 और आपका अदर में 20। अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म विद अ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम आपका 200, जैसे भी हमने पढ़ा था। अ कंपनी पब्लिक कैन बी 7 और आपका अपर साइड नो रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। लाइबिलिटी आपका लिमिटेड, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ अ फर्म अनलिमिटेड, वेयर इज लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द शेयर्स। मतलब जो पार्टनर्स हैं, दो लोग जिन्होंने स्टार्ट किया, तो उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, पूरी होगी, बट यहाँ पे क्या होगा आपका, लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसकी जितनी ओनरशिप है उतना आपका, ठीक है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट रेस्ट विद द पार्टनर्स, the property of the firm is owned by the partners themselves. In company it is a separate ownership and management, okay? So owners are different, management are different, okay? So basically owners, they generally decide the management, which is generally known as board of directors. The property of company is not the property of its members, okay? Company is a separate economic unit which is an artificial person created by law, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप डज नॉट हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, सिंपल सा बात करें हम लोग, एक की डेथ होगी तो अगले पे हो रहेगा, ठीक है, बट अ लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, मतलब आपका डेथ ऑफ प्रोपराइटर विल डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी, बट ये आपका पार्टनरशिप का अफेक्ट करेगा, ठीक है। ट्रांसफर, अ शेयर ऑफ इन पार्टनरशिप फंड कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। द शेयर ऑफ कंपनी इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है, जैसे एक्सचेंज में है तो आराम से, या नॉर्मल भी, ठीक है, कंपनी के बोर्ड रेजोल्यूशन से। गवर्नमेंट कंट्रोल, देयर इज लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल इन पार्टनरशिप, बट यहाँ पे क्या रहेगा आपका, स्ट्रिक्ट कंट्रोल आपका रहेगा। एक्चुअली आई मिस दैट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बनाया था बट वो कहीं से तो गलती से इरेज हो गया कुछ, तो ठीक है, जो इनके अराउंड आपका था, तो ध्यान रखें, क्योंकि हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया इसके ऊपर, ठीक है, तो जिसको आपको ध्यान है, एंड इट इज अ सब टॉपिक ऑल्सो, ठीक है। आई हैव फॉर्मस क्वेश्चन, तो जब मैं आपको रिविजन कराता हूँ ना, हर एक मॉड्यूल के बाद एक सेट ऑफ प्रैक्टिस आपका कराता हूँ, आई डेफिनेटली इंक्लूड वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है दोस्तों। चलो, सो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े,
ठीक है। एनी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंपनी अकाउंट 1, ठीक है। अगर आपने दोनों सेशन बहुत अच्छे से देख लें, ऑलमोस्ट 1 hour 47 के 1 hour 40 minutes का सेशन है दोनों, ठीक है। तो अगर आप स्पीड में भी देखेंगे तो 1 सवा घंटे या 1.5 घंटे के अंदर आप कवर कर देंगे, अगर इंट्रो आउट्रो को साइड कर देंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल 20 से आपका कंपनी अकाउंट 1, 2 एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। ये तीनों चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। बैलेंस शीट इक्वेशन तो है ही, तो जहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, सो डू नॉट टेक एनी चांस, बढ़िया से आपका पढ़िए, ठीक है। अगर कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है सो यू कैन कनेक्ट मी ओवर देयर। So GIB CIB Prep official. So this is my Telegram channel. So you can connect me over there, and the link is given in description box also. So you can join from that particular one. And apart from this also, if you need any help from my side, yeah, as you all know, so your exam date are up for 25, ठीक है। So आपके exam dates आपका आ चुके हैं। So February onwards they'll start taking your registration and your exam is as usual in the month of May itself, ठीक है। यूजुअली मार्च में आपका रजिस्ट्रेशन होते थे, एंड दैट कैलेंडर इज स्टिल इनकम्प्लीट जितना मुझे समझ में आता है पिछले 4-5 सालों से। जीआईबी सीआईबी का आईआईबीएफ ने कुछ तो गड़बड़ किया उसमें, एक तो डेट का गड़बड़ है, वो क्लियर कट दिख रहा है। सीआईबी में आपका सिर्फ एक को दिख रहा है, बट नो वरीज, हमें अपना प्रिपरेशन उसी सीक्वेंस में हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। वी नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन नाउ। सो बढ़िया से पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी हेल्प की जरूरत है, कोई भी सपोर्ट की जरूरत है, जस्ट फील फ्री टू आस्क, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। आई विल सी यू टुमारो एट सेम टाइम 7 PM with company account 2. I'll try to record entire company account 2 in one single video, but वो कई बार क्या होता है ना, I have some other classes and other things also, so वो आपका बाइफर्केशन करना पड़ता है। यूजुअली माई एफर्ट्स इज कि लाइक एक उसमें खत्म करो तो आपके लिए भी वो आसान हो जाता है उसको चीज़ों को पढ़ना या समझना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, दिस इज इट। कैसे लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट्स में लिख के, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, so we can have a maximum reach, right? So this is it. Bye bye, take care all, have a nice day, thank you.